dear student, how are you? I hope you are very well. In last video lecture, we have briefly explained you the real concept of differentiation, need of differentiation, and the importance of differentiation in learning physics. Today we want to discuss with you some specific problems based on differentiation. It is because you learn how a function is differentiated in specific cases. आज हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन पर बेस्ड होंगी. बिफोर कम टू दैट, लेट मी discuss with you some importance theorem which we have not discussed in a previous lecture. That is, if y is equal to u plus minus v, u and v are the functions of x and y depends on both the functions. Y is either sum of these functions or difference of these functions, then their differential dy by dx, this is, let you write sixth theorem, is can be written as equal to du upon dx plus minus dv upon dx. Here u and v are the function of x individually. ध्यान रहे, अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं या इवन मोर देन टू हैं तो आपस में सम है या आपस में एक दूसरे से का डिफरेंस है, देन हाउ y इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन. यानी चिन्ह के साथ, साइन के साथ हम इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे. सिमिलरली differentiation of log and exponent function, exponential. As you know, log x base e, log x base a, दो बेस पर log है x का, तो इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं. ये log बेस a पर है. तो suppose you have been given function y is equal to log x base e, then dy upon dx can be written as equal to 1 upon x simply. This is the formula of differentiating log base e. And if y is equal to log x base a, then we convert this log x base e into log e base a. Okay, this is treated as constant. So dy by dx is nothing but it is equal to 1 upon x log e base a. यानी कांस्टेंट हो जाएगा. log x base e का डिफरेंशियल जो 1 upon x होता है तो सिंपली 1 upon x log e base a हो जाएगा. तो इन सब की कहीं कहीं जरूरत पड़ती है. Now let us come to the problem based on differentiation. How one can differentiate a given function. We have written here some problems. Y, which is function of x, of different nature function के हैं. So first problem is y is equal to under root x. As you know from power and indices, y is equal to x under root x means x raised to the power 1 by 2. Okay, and here if you compare y x raised to the power n, so n is equal to here given in this particular function 1 by 2. So dy by dx from the formula means from the theorem of regarding differentiation, which is n x raised to the power n minus 1. So this becomes equal to 1 by 2 x raised to the power 1 by 2 minus 1, that is 1 by 2 x to the power minus 1 by 2, or you can this write as 1 by 2 under root x. Okay, so to make power x positive, we have to write this as
we will write this as 1 upon x raised to the power plus half, and which is equal to under root x. Similarly, let us take the second problem. This is the problem first. Now let us take second, which is given here. Y is equal to x raised to the power 4 plus x raised to the power 3 by 2 plus 5. Here, let us suppose the function is given like u, v and w. Means y is function of x and this is sum of three individual अलग-अलग functions का sum है. So we can write this dy upon dx is equal to d dx of x raised to the power 4 plus d dx of x raised to the power 3 by 2 plus d dx of 5. Okay, as from the just अभी हमने जो लिखा u is equal to v plus w, sorry, y is equal to u plus v, say dy upon dx is nothing but it is equal to du upon dx plus dv upon dx. सेम फार्मूला से हम इसको इंडिविजुअल एक एक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे और देन टेक दियर सम. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 4 into x raised to the power 4 minus 1 plus 3 by 2 into x raised to the power 3 by 2 minus 1 plus 0. As you know, from the very beginning, in first theorem of differentiation, d dx of c, which was 0, that is c is a constant, here 5 is a constant, so it's a differentiation with respect to x will be 0. So this dy by dx becomes equal to dy by dx is equal to 4 x raised to the power 3 plus 3 by 2 x raised to the power 1 by 2. This is the first derivative of the given function y, which is x raised to the power 4 plus x raised to the power 3 by 2 plus 5. Okay. Now we come to the third problem, which is given here. Y is equal to x plus 1 upon x. If y is equal to x plus third one, x plus 1 upon x, so we can write this as x plus x raised to the power 1 minus 1. रेसिप्रोकल कोई फंक्शन है तो उसे हम x raised to the power माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है. फिर इसको आप न्यूमरेटर साइड में ले जाएंगे तो पावर माइनस 1 हो जाएगी. सो दिस dy by dx becomes equal to d dx of x plus d dx of x raised to the power minus 1, and d dx of x becomes x raised to the power 1 minus 1 plus minus 1 x raised to the power minus 1, that is 1 हो जाएगा, plus minus 1 into x raised to the power minus 2, that is 1 minus x raised to the power minus 2. ध्यान रहे, whenever we take differentiation of any function having negative exponent or negative power, it always फंक्शन रिड्यूस होने के बजाय फंक्शन की वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाएगी, पावर्स मोर नेगेटिव होती जाएगी, यानी फंक्शन बढ़ता जाएगा रिड्यूस होने के बजाय. ओके, लेट अस टेक द फोर्थ प्रॉब्लम. इंडिविजुअल मैं प्रॉब्लम से इसलिए सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएशन में पारंगत हो जाएं, यानी आपको क्लियर कट डिफरेंशिएशन की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए. लेट अस टेक द प्रॉब्लम फोर्थ वन. हियर given in fourth problem, y is equal to x power 2 plus 5 and 2x minus 3. Let us assume this as u and this as v. So this is the case of y is a function of x and which is product of two individual functions u and v. Okay, so we know the formula of dy by dx is equal to u dv upon dx plus v du upon dx. Okay, as if y is equal to u dot b, then dy by dx equal to u और v आपको पता है, u की जगह पे x square plus 5 into d dx of 2x minus 3 plus v means 2x minus 3
डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान रहे इसमें कुछ थ्योरम्स और इन्वॉल्व हैं, केवल इसके अलावा और देखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यहाँ दो फंक्शन है, एक एक्स का फंक्शन है, एक कांस्टेंट है, तो दिस वी कैन राइट एज डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी एक्स ऑफ 3, ओके, प्लस 2x माइनस 3 डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ऑफ 5। अभी चूंकि शुरुआत है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इनको डायरेक्ट भी आगे आप लिख सकते हैं इनकी वैल्यू, लेकिन अभी यहां आपको इसी तरीके से लिखना है। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है, उसका प्रोडक्ट रहेगा x का, ये हो जाएगा 2, ओके, माइनस 0 एंड प्लस 2x माइनस 3 एंड डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, okay, plus 0. So we have 2x square plus 5 in here plus 2x minus 3 into 2x here, that is we have 2x square plus 10 plus 4x square minus 6x, that is we have got 4 to 6x square minus 6x plus 10. This is the differentiation of the given function. इसको करने का एक और तरीका था, पहले हम दोनों का क्या कर लें, प्रोडक्ट कर लें, और प्रोडक्ट करने के बाद जो आ जाए वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन कर लें। तो इसको हम देख करके करते हैं कि क्या वी विल गेट द सेम रिजल्ट, और मिलेगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर एक बार क्वेरी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा है, यहाँ पर 2x का 2 आ गया माइनस 0, और 2x माइनस 3, यहाँ 2x आया और 5 का 0 हो गया, तो 2x का मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस 6x, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर मिल करके हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, आपको फंक्शंस का प्रोडक्ट लेना आता होगा वेरिएबल्स का, तो x स्क्वायर इंटू 2x, ओके, तो प्लस 10x इसमें मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3x स्क्वायर, ओके, माइनस 50 है, ये y की वैल्यू आ गई, और ये हो गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 50, ये y की वैल्यू हुई। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी एक्स ऑफ 15 rather. सो वी हैव 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर हो गया, x क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 बाहर हो गया, x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, प्लस 10x का 10 इंटू डी एक्स ऑफ x करेंगे तो 1 हो जाएगा, ओके, माइनस 0, सो वी हैव 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। तो ध्यान रहे वट एवर सिंपल, कभी कभी ऐसी स्थिति आती हैं कि ये जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, प्रोडक्ट करना कठिन हो जाता है, तो क्या करते हैं, इनके प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा करके हम करते हैं। तो इन बोथ प्रोसेसेस वी विल गेट द सेम रिजल्ट। डिफरेंशिएशन में चाहे हम इस मेथड का इस्तेमाल करें चाहे इस मेथड का, लेकिन ये सिंपलर है, आप लोग ज्यादातर इसी से करिएगा, ओके। लेट मी एक्सप्लेन यू द solution of question means problem 5th, which is given here, y is equal to x square minus 1 upon 3x plus 4. This is the function of type y is equal to u upon v. Here u and v are the function of x. So as you know, the theorem से आपको पता है कि dy by dx यहाँ क्या होगा, always you should remember this formula. This is equal to v du upon dx minus u dv upon dx upon v square
So here we consider u is equal to x square minus 1 and v is equal to 3x plus 4. So if we replace this ub in this formula, we find that dy by dx is equal to 3x plus 4 into d dx of x square minus 1 minus v u x square minus 1 d dx of 3x plus 4 and this whole upon 3x plus 4 whole square. अब इसको हल करें तो ध्यान रखिए 3x plus 4 एंड ये 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, 1 का डिफरेंशियल क्या होगा -0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहने दीजिए, यहाँ क्या आया 3x का 3 आ गया प्लस 0 आ गया, यानी और नीचे आपको मिला 3x plus 4 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर रहता है एंड दिस गिव्स यू 2x 3x plus 4 minus 3x square minus 1 upon 3x plus 4 whole square. Okay, let us simplify this. We will get a result which is equal to multiply 2x with this function, that is 6x square plus 8x minus 3x square, 8x minus 3x square plus 3 upon 3x plus 4 whole square. Okay, that is 3x square plus 8x plus 3 upon 3x plus 4 whole square. This is the dy by dx of the given above function. Now let us take the final means sixth problem, which is y is equal to 2x plus 3 whole square. Okay, तो इसका तो एक तरीका यह है कि हम इसका स्क्वायर लेकर के पूरे फंक्शन को एक्सपेंड करके वैल्यू पहले फाइंड आउट करें एंड देन डिफरेंशिएट. दूसरा एक तरीका और है, तो लेट मी सॉल्व दिस एज dy by dx. इसका अगर हमें निकालना है तो इसे हम क्या करते हैं 2x plus 3 को हम मान लेते हैं t, लेट. ओके, सो इसका डिफरेंशियल करें तो 2dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू 1/2 dt. और इसको क्या करेंगे, ये फंक्शन हमारा हो गया t स्क्वायर, और तो t स्क्वायर का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना y बिकम्स t स्क्वायर, और dy बाई dx जब लेना है वी विल टेक d dt t स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, सॉरी dt अपॉन dx, dt अपॉन dx. तो यहाँ से अगर हम देखें dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, यहाँ से क्या मिलेगा इक्वल टू 2. तो यहाँ पर t स्क्वायर का 2t हो गया डिफरेंशियल, और dt अपॉन dx का क्या हुआ 2. तो ये 2 इंटू टी की जगह पर 2x प्लस 3. ओके, क्योंकि हमने एज्यूम किया था 2x प्लस 3 को t इंटू 2, यानी मिला हमको 2x प्लस 3. ये तो मिल गया हमें dy बाई dx की वैल्यू. इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, प्रतिस्थापन द्वारा डिफरेंशिएशन. यानी हम फंक्शन को कोई एक वैल्यू मान करके एक नए फंक्शन के रूप में इसको एक्सप्रेस कर देंगे. तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n आता था, तो सिमिलर फंक्शन हमको मिला y इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब ध्यान रहे हमें y का t के रिस्पेक्ट में करना होता तो सिंपली 2t आ जाता, लेकिन हमें करना क्या है y का x के रिस्पेक्ट में. तो हम इसको रीअरेंज करेंगे कि dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx. ओके, तो dy बाई dx की जगह तो dy बाई dt लिखा और dt अपॉन dx लिखा.
तो dy बाई dt का डिफ्रेंसिएशन 2t आ गया और dt अपॉन dx यहाँ से किया तो हमें 2 मिल गया। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक और इसका तरीका आपको जो बता रहे थे, सबसे पहले क्या कर लें, स्क्वायर कर लें कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 यानी 12x प्लस 9। अब इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट कर लें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 12x प्लस डी डी एक्स ऑफ 9। अब ये तो 0 देगा क्योंकि कांस्टेंट है। 4x स्क्वायर का 4 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 12x का 12 हो जाएगा, यानी अब ये आ जाएगा 8x प्लस 12 और इसमें से 4 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3, तो विच इज सिमिलर रिजल्ट एज वी हैव ऑब्टेन्ड इन अर्लियर केस, यानी सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो जो जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहे आप कर सकते हैं, आपको जानना चाहिए। लेट अस इसका एक व्यवहारिक एग्जांपल जो कि फिजिक्स में वेरी मच यूटिलाइज होता है, उससे संबंधित एक डिफरेंशिएशन आपको करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन डील कर रहे होंगे, तो a body which is moving in a straight line has got displacement, and its displacement depends on time, which is given here s is equal to t square, rather here s is given here t square plus 3t plus 5। सपोज करिए कि डिस्प्लेसमेंट जो कि टाइम का फंक्शन है गिवन है, इसके अकॉर्डिंग कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ द बॉडी, तो उसको इस रूप में न पूछ करके हम मैथमेटिकल फार्मूला मैथमेटिक्स बनाई गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ds अपॉन dt, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। तो लेट अस सॉल्व दिस। ds अपॉन dt इज इक्वल टू d dt ऑफ होल फंक्शन दैट इज t स्क्वायर plus 3t plus 5, and this becomes d dt of t square plus d dt of 3t plus d dt of 5। ध्यान रखिए यहाँ dy अपॉन dx नहीं, फंक्शन में y की जगह पे s हो गया डिस्प्लेसमेंट, और जो x वेरिएबल था वो वेरिएबल यहाँ क्या हो गया, टाइम हो गया। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा वेरिएबल और फंक्शन दोनों डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर मिला सिंपली टी स्क्वायर का 2t प्लस 3 कांस्टेंट है, dt अपॉन dt का 1, 3 इंटू 1 प्लस 0, सो वी विल गेट 2t प्लस 3 ds अपॉन dt। ये as we have discussed in previous lecture that differentiated derivative of any function with respect to any variable gives us the instantaneous value of any quantity with respect to some other quantity which is on which it depends। यानी यहाँ पर टाइम चूंकि वेरिएबल है तो ds अपॉन dt जो है क्या दे रहा है, किसी भी एक क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है, और अगर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और जो कि 2t प्लस 3 है, ये भी टाइम डिपेंडेंट आ रहा है, यानी किसी मोमेंट पर उस पार्टिकल की जो मूव कर रहा होगा उसकी अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए तो हम उस डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है व्यवहारिक उदाहरण है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंशिएशन की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें किसी भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में फंक्शन पता है और उसका किसी इंस्टेंट पर वैल्यू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो फॉर दैट वी हैव टू टेक a derivative of that function. Similarly, we can take the derivative of some other exponential type of function. Let us assume here question y is equal to e की power 2x. So as you know, dy by dx here can be written as equal to e to x, क्योंकि e की d dx of e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है
वो सिंपली e की पावर x होता है, बट यहाँ 2x है तो e की पावर 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x, यानी e की पावर जो रहेगी उसको हम ऐसे सच लिख देंगे और प्रोडक्ट जो लेंगे वो ऊपर एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल लेंगे। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है 2x है, तो 2x का डिफरेंशियल क्या होगा 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2e की पावर 2x। तो अगर इसको हम फार्मूला बनाएं डी डी एक्स ऑफ e की पावर ax, तो दिस गिव्स यू सिंपली e इंटू ई की पावर ax। ओके, जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि लॉगरिथमिक फंक्शन में यू हैव बीन गिवन y इज इक्वल टू log 2 बेस 10, ओके, और हमें ये पता है कि log x बेस e की वैल्यू क्या होती है, तो इसे हम क्या करेंगे log 2 बेस e इंटू log e बेस 10 कर लेंगे। ओके, तो ये dy बाई डी एक्स अगर हम यहाँ लेंगे दैट गिव्स अस log x बेस e का जो डिफरेंशियल होता है 1/x होता है, तो 1/2 इंटू log e बेस, यहाँ तो दोनों कांस्टेंट ट्रीट हो सकते हैं, ये बात हो रही थी जैसे log x बेस 10 है तो यहाँ पर ये x हो जाएगा और log e बेस 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1/x इंटू log e बेस 10। तो इस तरीके से डिफरेंशियल आप log के भी कर सकते हैं। log की कुछ स्पेशल और प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कॉमनली यूटिलाइज होती हैं फिजिक्स में भी या अन्य जगहों पर। तो जैसे सपोज करिए गिवन है log a अपॉन b और log a इंटू b, यानी दो अलग अलग क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, उसका log नेचुरल या किसी बेस पे लिया जा रहा है और यहाँ पर डिवाइड है। और तीसरा फार्मूला है log a रेज टू द पावर m, ओके, बेस समथिंग e ही मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू log a बेस e माइनस log सेम बेस होगा, अगर 10 है तो बेस 10 रहेगा, log b बेस e here becomes equal to log a base e plus log b base e here equal to m log a base e। बेस e होना आवश्यक नहीं है, बेस 10 है तो बेस 10 पर हो जाएगा। किसी भी बेस पर अगर दो क्वांटिटीज का रेशियो है तो उनका log लेना है तो हम दोनों के log का डिफरेंस ले लेंगे। अगर दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का log लेना है बेस इसी पर, उस बेस पर हम दोनों के log का सम हो जाएगा, ले लेंगे। log किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर कोई अन्य क्वांटिटी है इसी बेस पर, तो हम पावर को प्रोडक्ट के रूप में लिख करके log दैट क्वांटिटी उसी बेस पर ऐसे कर लेंगे। इसकी जरूरत सामान्यतः पड़ती है जब हम लोग एरर्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो लॉगरिथम्स की वहां वैल्यू होती है। एक्यूरेट एरर्स निकालने में log की भूमिका होती है। तो प्रीवियस लेक्चर और टुडेज के लेक्चर को जब दोनों को कॉम्पैक्ट रूप में यानी दोनों एक साथ अगर आप लर्न करेंगे, केवल पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया तो आपको कुछ आइडिया हो गई, सेकंड नहीं पढ़ा तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे जब पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और पार्ट फर्स्ट डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट में कर रहा हूं, यानी वीडियो लेक्चर पार्ट थर्ड एंड वीडियो लेक्चर पार्ट 4 आज जो मैथमेटिकल टूल का है, अगर इसको दोनों को एक साथ आप लर्न करेंगे, वीडियो वॉच करेंगे, देखेंगे, तो यू हैव ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और इसका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइजेशन कैसे होगा। ये आप लोगों के मन में बात आ सकती है कि सर फिजिक्स वाले हैं और क्यों मैथमेटिक्स पर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं। इट इज बिकॉज इन ऑर्डर टू लर्न द मैथमेटिक्स एज ऑलरेडी आई हैव सेड यू दैट वी मस्ट नो द मैथमेटिकल टूल्स, particularly the differentiation and the integration, because in deriving different expressions, these two tools are very useful, very much required। पहले जो चीजें समेशन के मेथड से की जा रही थी उनको अब इंटीग्रेशन मेथड से किया जाता है। फर्दर के वीडियोस में हम आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का रियल कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ वन कैन इंटीग्रेट एनी गिवन फंक्शन, इतना ध्यान में आपके बात रहनी चाहिए
कि डिफरेंशिएशन, व्हेन वी टेक डिफरेंशिएशन, तो दो बातें ध्यान में रहे। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में इंटरेस्टेड हैं, और अदरवाइज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर हम ले रहे हैं तो ये एवरेज वैल्यू सफिशियंट है जानकारी के लिए। एवरेज वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, ओके, रेशियो बताता है। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, वी नो द फंक्शन एंड वी वांट टू नो द होल ऑफ द फंक्शन, या उसकी संपूर्ण समेकित इंटीग्रेटेड रूप से जानकारी चाहते हैं, तो डेफिनेटली इंटीग्रेट करने के बाद वी विल गेट द न्यू फंक्शन, बिगर फंक्शन, और इंटीग्रेट करने के बाद रिड्यूस होता है। अगर पावर्स पॉजिटिव हैं तो फंक्शन रिड्यूस होता है, पावर नेगेटिव हैं तो फंक्शन और नेगेटिव पावर्स के साथ यानी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो लेक्चर आपका मैथमेटिकल टूल पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th आर वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ differentiation and its use for as far as the physics point of view, and today that's all। आप लोग निश्चित रूप से अभी कोर्स का कोई दबाव नहीं है और इसको एंजॉय के रूप में इस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो ध्यान से समझ लें कि अगर उनको फिजिक्स पढ़ना है तो इतनी सी मैथमेटिक्स बहुत आवश्यक है। आपके डिफरेंशिएशन के सवाल तो बहुत सारे हैं, टिपिकल से टिपिकल हैं, बट वी आर नॉट डीलिंग दैट वन, बिकॉज हमारा जिससे काम चल जाएगा तो हम उनकी चर्चा करके और हम फिर अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। दैट्स ऑल टुडे।